Namaskar, I am Dr. Surendra Pandey, General Secretary, Electrohomeopathy Foundation of India. I am the part of the Medical Legal Committee of the Electrohomeopathy Foundation as well as the Research Committee of Electrohomeopathy Foundation. Today, I am going to discuss very important topic that is related to just recently we have received one judgment. In few of the group, people having the confusion and doubt, they require the clarification whether this order, which was this judgment, which was issued by the Madras High Court, it is related to electrohomeopathy or not. And if it is related to electrohomeopathy, what would be the impact on electrohomeopathy? What would be the impact on recognition process of electrohomeopathy, and whether we should practice in electrohomeopathy or not? Basically, this is the order related to electrohomeopathy and the state of the Tamil Nadu, but having the impact because this is the court order. So if we receive any court order, that would impact entire India. So let's start. My communication, the mode of the communication would be English and Hindi, so everyone can understand. So चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. हाई कोर्ट ऑफ मद्रास का ये ऑर्डर है दैट वी रिसीव्ड ऑन 16 मार्च 2023. तो इसका जो रिट पिटिशन फाइल हुआ था दैट वाज फाइल्ड ऑन 2015. रिट पिटिशन नंबर है इसका 23993 और इसमें जो है पिटिशनर हैं 61 पिटिशनर एंड पिटिशनर दैट इज द नॉट इलेक्ट्रोपैथ, दैट इज द प्रैक्टिशनर. उन्होंने जिन्होंने पिटिशन फाइल किया था किसके अगेंस्ट में, इन्होंने पिटिशन फाइल किया था पुलिस और हेल्थ अथॉरिटी के अगेंस्ट में कि हमें हरिसमेंट किया जा रहा है एंड दे आर दैट पुलिस ऑफिसर एज वेल एज दैट हेल्थ ऑफिसर दे आर डिस्टर्बिंग. सो तो उसी से रिलेटेड ये जो ऑर्डर था. तो अब चलिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं हमारा जो रीट पिटिशन है. तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 61 पिटिशनर हैं और 17 रिस्पोंडेंट जो हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, मोस्टली द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस फ्रॉम द तमिलनाडु. ओके, बेसिकली द चेन्नई Trichy district, mostly from the Chennai, Salem district, and the commissioner of the police of the Chennai. So इन लोगों को पार्टी बनाया गया था. इसमें the petitioner who filed this, they did one prayer under the article 226 of the Constitution of India, praying the issuance of the writ of the mandamus. तो यहाँ पे क्या रीट ऑफ द मैंडेमस फाइल किया गया था. सपोज रीट ऑफ द मैंडेमस व्हेन वी फाइल when that health authority or any government authority, if they are not fulfilling their duty and they are doing some unethical work that is not related to their purview, if they are doing these things, then we can file the writ of the mandamus. तो यहाँ पे हमारे जो 61 लोग थे, जो हमारे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जिन्होंने फाइल किया हुआ था 61 लोग हैं. मैं नहीं जानता हूँ कि हमारे लोग थे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लोग थे कि नहीं. चलो आगे देखते हैं ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पीपल आर बिलोंग टू द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और नॉट. So what they have prayer, they did the prayer to the high court that petitioner right to practice and prescribe the alternative medicine strictly in conformity with the certificate of the community medical services. So all the 61 petitioners, they have the certificate of the community medical services, जो हम लोग CMS बोलते हैं. Usually we call that CMS. So to carry on lawful occupation under the article 19(1)(g) of the Constitution of the India by the considering the representation dated on the 15 July 2015. So 15 July 2015 को ये फाइल हुआ था और रिट पिटिशन. ओके, रिट मैंडेमस. एंड यहाँ पे एक रेफरेंस लिया गया था डॉक्टर मुख्तार चंद केस 1998 का एक रेफरेंस लेके वहाँ पे एक हमारे मतलब एक केस का रेफरेंस लेके फाइल किया गया था. So now come to the order of the judgment. So order of the judgment, the writ on hand the instituted of the forbear the respondent in any from the interfering with the
petitioner right to practice and prescribe the alternative medicine strictly in conformity with the certificate of the community medical services. So what we that order is associated with those who are having the community medical services. Strictly they are practicing the alternative system of the medicine. We should not interfere their practice. That was the prayer. So this was reference. We have taken the article 19(1)(z) which state that we can practice anywhere in India. So right to practice, basically right to practice, right to do the business. Okay, so any citizen of the India can practice anything if he is qualified. So this was the article 19(1)(z) has been taken in the consideration, and that was the prayer from that the petitioner side, means जो 61 लोग थे उनके साइड से ये बोला गया था. Now come to the point number 2. All the petitioners, so 61 petitioners, they joined together and they went for the writ of the mandamus. So they are the practicing of the alternative medicine like the acupuncture, electropathy, hypnotherapy and immunotherapy and yoga. So just note down here, they are doing the mixopathy. This is not clearly about that. This is not the straight about the electrohomeopathy. This is they have given the certain that yoga, acupuncture, other things also involved. But things is like that. All the 61 people, they are the petitioner having the community medical service CMS course they have done, and that too also 6 months CMS course they have done, certificate course done. So the course was the period of the 6 months, which include the teaching training classes. The petitioner said that they gain the experience and diagnosis treating the patient. So they told that within the 6 months they came to know how to diagnose, how to treat the patient, and they are the trained and they have the certification, CMS certification. Now the grievance of the petitioner are that they are being obstructed by the police authority, medical department authority while practicing alternative medicine in their respective locations. Since the petitioner was intercepted periodically, they have submitted their representation to the government, recognize their medical practice while in otherwise accordance with the course undergone by them. So here they have also discussed. इन्होंने अब जो petitioner थे, इन्होंने ये भी बताया इस prayer में कि इन्होंने गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया कि गवर्नमेंट को हमारा जो है मेडिकल प्रैक्टिस जो है उसको रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, ताकि हम लोगों को जो अथॉरिटी है और पुलिस है वो परेशान ना करे. अब देखिए यहाँ पे बात है ना कि इन्होंने अभी तक क्या बोला हुआ, अल्टरनेटिव मेडिसिन. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्योरली कहीं पे बोला नहीं गया है. चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में क्या हुआ है. तो Learn counsel for the petitioner mainly contended that the practitioner have completed 6 months of the community medical services, which is a diploma course, and therefore continue to practice the medicine. अब इन्होंने बोला कि we have the community medical services 6 month course and we will practice medicine. ठीक है, 6 महीने का कोर्स करके मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे, ये बोला गया है, और हमें इंटरफियर ना किया जाए, ये भी बोला गया है. Therefore, the respondent must be restrained from initiating action against the petitioner while practicing alternative medicine alternative to locality. तो रिस्पोंडेंट कौन है? जो पुलिस ऑफिसर है, हेल्थ अथॉरिटी है, उनको बोला जाए. हमारा प्रेयर मतलब ये जो petitioner थे उनका प्रेयर ये था कि उनको बोला जाए कि जिनके पास CMS का कोर्स किए हुए हैं उनको कहीं रोका ना जाए, उनको प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि वो 6 महीने में पूरी तरह ट्रेंड है. ठीक है, अब यहाँ पे 5वें पॉइंट में आते हैं. अब यहाँ पे एंट्री होती है रिस्पोंडेंट, मतलब जिसके खिलाफ किया गया. किसके खिलाफ किया गया है? पुलिस ऑफिसर के, हेल्थ अथॉरिटी के खिलाफ किया गया है. तो उनके भी तो एडवोकेट रहते हैं. नाउ ही इज रिप्लाइंग. अब वो रिप्लाई क्या कर रहे हैं? The learned additionally government pleader appearing on behalf of the respondent conducting that the writ petitioner are not qualified medical practitioner. ठीक है, अब उन्होंने आके बोल दिया कि ये क्वालिफाइड पर्सन, ये जो 61 लोग हैं जिन्होंने रिट पिटीशन मैंडेमस किया हुआ है, ये लोग हैं, ये क्वालिफाइड पर्सन नहीं है.
कि आगे क्या बोलते हैं, दे हैव नॉट गॉन एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कोर्स बीइंग कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द status of the rule in the post. So they are telling they have not undergone any, so they don't have the any recognized degree. बोलने का मतलब ये था कि they don't have any recognized degree. The diploma in the community medical services certificate course issued in the favor of the writ petitioner by the National Board of Alternative Medicine. So who issued the community medical services diploma? National Board of Alternative Medicine is not. Now the respondent means जो advocate थे गवर्नमेंट के, उन्होंने बोला नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट. सो नेशनल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन जहाँ से डिप्लोमा आया था, they are the not recognized system of the medicine. They are the National Board of the Alternative Medicine not recognized institute itself, but it is a private institute and therefore such diploma course conducted for the 6 months cannot be considered as a valid course. उन्होंने बोला कि this is a private organization, private institute, so we cannot consider this is a valid. So जो CMS का उनको valid नहीं consider कर रहे हैं. The petitioner have not defined the alternative medicine or explained the area of the medicine practice. They generally contended that they are practicing alternate medicine which cannot be accepted. So what happened here? So the petitioner, I mean those 61 petitioner, they have not specified what is the alternative, which alternative medicine they are following. So basically I'm telling to electrohomeopathy people, so this is not, there is no specification regarding the electrohomeopathy. So that's why electrohomeopathy foundation, we want to clear you all that this order, because here also they have mentioned the yoga, they have mentioned the acupuncture, they have also included the electrohomeopathy. Might be few people having the electrohomeopathy diploma or they having the electrohomeopathy BEMS courses. But here they have never, in this prayer, they never specify what the alternative system, what is the alternative medicine they are using. Same thing that government councillor who was presenting the government, he told that what is the alternative. What is the alternative? You have not specified what the mode you are using. Now next come to the point number 6. यहाँ पे point number 6 में क्या बोला है? Treatment, if any, given in the petitioner cannot be trusted upon the unqualified person like the petitioner cannot be permitted to treat the patient which is with the dysterious and the writ petition to be rejected. अब इन्होंने बोला they cannot be trusted and they are not qualified person, they are unqualified. So there is the harm for the people and the petitioner should be the जो writ mandamus जो इशू किया हुआ था उसको इन्होंने बोला कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, जो उनका प्रेयर था उसको रिजेक्ट कर दिया जाए. ये कौन बोला? ये गवर्नमेंट काउंसिलर बोले जो गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हो रहे थे. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 7. नो डाउट अल्टरनेटिव मेडिसिन इज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री. नाउ हियर दे आर टेलिंग अल्टरनेटिव मेडिसिन इज अवेलेबल. देखिए अल्टरनेटिव में सब आता है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, एवरीथिंग कम्स इन द अल्टरनेटिव ओनली अदर देन द एलोपैथी. So it is available across the India, but government councillor, the respondent, they are telling it is available in the country, but it should be it should be practiced by the registered medical practitioner those who having the qualification. And here also एक बात देखो आप, इन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन बोला लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ, मैं नेचुरोपैथी, मैं एक्यूपंक्चर, मैं होम्योपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, मैं क्या कर रहा हूँ, आयुर्वेदा कौन सा कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया. Again in the point number 7 that respondent गवर्नमेंट काउंसिलर दो जो प्रेजेंटिंग जो गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने एक आर्टिकल सेक्शन बताया इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 2F. Okay, the section 2F stating that medicines means the modern system of the medicine in all its branches and include the surgery and obstetrics but does not include the veterinary and medicine and surgery. So MCI का जो एक्ट है 1956 उसमें क्या है, मेडिसिन क्या है, कौन यूज कर सकता है वो स्पेसिफाई है, उन्होंने गवर्नमेंट काउंसिलर ने बोला. एज पर द सेक्शन 15(2)(b) एक और सेक्शन है, नो पर्सन अदर देन द मेडिकल प्रैक्टिशनर इनरोल्ड ऑन ए स्टेट मेडिकल रजिस्टर शैल प्रैक्टिस इन द मेडिसिन इन एनी स्टेट. सो उन्होंने बोला कि हु कैन प्रैक्टिस द मेडिसिन. So those who are as per the section 15(2)(b), those who are not enrolled in the state medical register, they should not practice the medicine.
तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि हमने CMS का 6 महीने का कोर्स किया है, हमें प्रैक्टिस मेडिसिन करने दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि 15(2)B में जो है वो ऐसा है कि इनको मेडिसिन का प्रैक्टिस, दे आर टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन। एक बात याद रखो, अल्टरनेटिव की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे भी मेडिसिन की, और इनका प्रेयर भी था कि इनको मेडिसिन यूज करने दिया जाए। चलो, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 8, द लर्न एडिशनल गवर्नमेंट प्लेडर, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हुए थे, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट फैक्ट दैट लीगल एक्शन वर ऑलरेडी इनिशिएटेड अगेंस्ट द रीट पिटिशनर फॉर देयर वायलेशन अंडर द एक्ट एंड द रूल। सो ही वाज टेलिंग, आई मीन द गवर्नमेंट प्लेडर, those who are appearing for the government, he was telling already we have initiated the action against this practitioner with the for violation of the rule. Court have also passed order unrecognized person cannot be, इन्होंने बोला कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किया है कि अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन कैन नॉट टू प्रैक्टिस द मेडिसिन इन एनी फॉर्म, मेडिसिन को अनरिकॉग्नाइज नहीं प्रैक्टिस करें। ये एक जनरल ऑर्डर है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये स्पेसिफिक सेंस में नहीं देख सकते। नाउ तो कम टू द पॉइंट नंबर 9, इन द प्रेजेंट केस द सर्टिफिकेट इशू बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ द अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड लीगल वैलिडिटी आर टू बी इंक्वायर इनटू द बाइल पुलिस अथॉरिटी। अब इन्होंने बोला हुआ है कि भाई जो इनको नेशनल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन ने जो इनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसका वैलिडिटी जो है वो पुलिस देखेगी, ठीक है। द सेड नेशनल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन ग्रांटिंग द डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर द 6-month कोर्स आर इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द कंसोमेंस विद द गाइडलाइन इशू बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया आल्सो लुक इनटू। अब उन्होंने बोला कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या गाइडलाइन दिया हुआ है और नेशनल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट वी विल चेक। ओके, ये देखा जाएगा। If any violation, illegality, irregularity are identified, then all the necessary suitable action will be initiated. ये कौन बताया? ये जो गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहे थे उनके लीगल एडवाइजर ने, जो थे लीगल काउंसिलर ने बोला कोर्ट में। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 10, हम पॉइंट नंबर 10 में देखते हैं, allowing any unrecognized institute to conduct the 6-month medical course and issue diploma certificate would result in the disastrous consequence in the society। अब इन्होंने सोशल पॉइंट को बताना चालू किया, तो कि बोला कि भाई अगर अनरिकॉग्नाइज कहीं से भी कोई ये डिप्लोमा लेके मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। हेल्थ बीइंग आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20। अब उन्होंने आर्टिकल 19(1) में बोला था, और यहाँ पे और आर्टिकल वो गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट जो थे उन्होंने वो लेके आ गया आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21, स्टेट इज ड्यूटी टू बाउंड इंश्योर दैट द अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आर डील विद प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द वैलिड डिप्लोमा सर्टिफिकेट issued by those unrecognized medical institute are cancelled and persons secured with the certificate are prevented from the practicing of the medicine in the society। 21 आर्टिकल बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी अनऑथेंटिक जो इंस्टीट्यूट है वो अगर किसी को डिप्लोमा डिग्री दे रहा है तो उसको प्रिवेंट करना चाहिए और इंस्टीट्यूट को बंद करना चाहिए, किसी को इसके ऑन बिहाफ ऑफ दैट मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करने देना चाहिए। ये 21 आर्टिकल 21 का उन्होंने बताया। दिस बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड मैंडेट ऑफ द स्टेट टू इंश्योर द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल। अब वो आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू द लाइफ, सो वी आर यूजिंग मेडिसिन ऑन इनटू द ह्यूमन बीइंग, सो राइट टू लाइफ तो है ही, तो राइट टू लाइफ भी एक आर्टिकल का फंडामेंटल राइट है। सो द प्रेजेंट केस रिक्वायर एन इंक्वायरी एट लास्ट सो दैट फाइंड आउट वेदर मेनी पर्सन इन द सोसाइटी ऑन गेटिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट प्रैक्टिसिंग द अल्टरनेटिव मेडिसिन आर नॉट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट जिनको मिल रहा है वो कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब MBBS डॉक्टर हो गए हैं वो 6 महीने का डिप्लोमा करके, वो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो थे गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट थे उन्होंने बोला। अब देखिए आते हैं पॉइंट नंबर 11 पे, द रिट पिटिशनर हियर इन आर नाइदर होल्डिंग एनी वैलिड मेडिकल डिग्री आर नॉट देयर नेम आर इनरोल्ड इन द मेडिकल प्रैक्टिशनर इन तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल। सो तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल में दे डोंट हैव एनी मेडिकल प्रैक्टिस। अब रिस्पोंडेंट ने बोला कि दिस 61 practitioners they don't have the medical practice. Second thing, they are not enrolled in the Tamil Nadu Medical Council. So thus they are not entitled to practice alternative medicine। अब यहाँ alternative medicine भी आया, फिर से एक बार नोट कर लो, ये alternative medicine कॉमन आया हुआ है, ठीक है, कि ये किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेटेड या एक्यूपंक्चर से रिलेटेड या योगा से रिलेटेड नहीं है।
तो इन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन, उन्होंने हमारे मतलब जो पिटिशनर थे, जो 61 लोग गए थे कोर्ट में, उन्होंने भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो इन्होंने भी उसी पे उसका फायदा उठा लिया और यहाँ पे उन्होंने बोला कि अल्टरनेटिव मेडिसिन, इनके पास डिग्री नहीं है, दे आर नॉट एनरोल इन द स्टेट रजिस्टर, सो दे शुड नॉट प्रैक्टिस इन द स्टेट. The petitioner have not established any acceptable ground for the purpose of the considering the relief. So गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बोला इनको रिलीफ मत दिया जाए, एकदम रिलीफ मत दो. तो जज साहब को बोला कि रिलीफ इनको मत दिया जाए. अब कोर्ट का कंक्लूजन क्या आया, देखिए कोर्ट का कंक्लूजन क्या आया, इसके बाद हम हमारा भी कंक्लूजन डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमने करना क्या चाहिए था और फ्यूचर में क्या करेंगे. अकॉर्डिंग टू द कोर्ट इंक्लूडेड इन द पास्ट द फॉलोइंग, द रिलीफ as such out in the present petition stand rejected. जो 61 लोगों ने मैंडेमस किया था कि गवर्नमेंट ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, ये लोग हमें परेशान करते हैं, उनको डायरेक्शन दो कि मत परेशान करें, हमें मेडिकल जो कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज का डिप्लोमा 6 महीने का डिप्लोमा लेके आए हुए हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, उनको मेडिसिन की प्रैक्टिस करने दिया जाए आर्टिकल 19(1)(g) के तहत. तो उन्होंने बोला कि भैया ये नहीं हो सकता है. कोर्ट ने उनका बोला कि ये आपको रिलीफ नहीं दिया जाएगा. ठीक है, पहले ही कोर्ट ने इनका जो पिटीशन था वो रिजेक्ट कर दिया. दूसरा हुआ, फर्स्ट रिस्पोंडेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज डायरेक्टेड टू इश्यू द एप्रोप्रिएट सर्कुलर टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस एंड द कमिश्नर ऑफ द पुलिस टू competent authority to conduct the periodically inspection, collect the information regarding the unregistered or unrecognized medical practitioner who all are practicing medicine in any locality and initiated all the appropriate necessary legal action against them according with the law. अब इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है कोर्ट ने कि जितने भी इन्वॉल्वमेंट है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो इंस्पेक्ट करो कि जो लोग भी इरेगुलर, इलीगल हैं, जो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, अगर वो या तो ऑथराइज नहीं है और वो मेडिसिन की, फिर से नोट डाउन करो, मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं. अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 2F जो थे, उसमें मेडिसिन की प्रैक्टिस कौन कर सकता है, वो कर सकता है जिसके पास मेडिसिन की डिग्री हो. लाइक जो MBBS डॉक्टर हैं, वो उनको मेडिसिन की प्रैक्टिस करना है. तो ये मेडिसिन के बारे में वो बात कर रहे हैं कि जो इनका ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर पॉइंट नंबर 2 पेज नंबर 11 पे वो मेडिसिन की बात कर रहा है. ठीक है, कि उनके पास जो मेडिसिन की प्रैक्टिस वही कर सकता है जिसके पास प्रॉपर उसकी डिग्री हो. नाउ थर्ड पॉइंट, वो ये इंक्वायरी किसको करना, पुलिस को. थर्ड पॉइंट, द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द पिटिशनर डू नॉट कंटिन्यू द मेडिकल प्रैक्टिस. अब जो 61 लोग थे उनको बोला है कि मत प्रैक्टिस करो, आइदर इन द अल्टरनेटिव मेडिसिन आल्सो, क्योंकि यहाँ हमारा डिफेंड ही बहुत कमजोर हो गया. हमारा पिटिशन ही बहुत कमजोर हो गया. डिफेंड तो बहुत स्ट्रांग था, गवर्नमेंट का डिफेंड इतना स्ट्रांग, इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया कि उनको जैसे आपको कन्विंस होना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे बिकॉज वी हैव नॉट गिवन द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, आई थिंक so or any form of the medicine here after those absence of the valid medicine certificate recognized under the state and rule force without the name being the registered in the medical council of तमिलनाडु. तो इन्होंने बोला है कि जो तमिलनाडु में मेडिकल काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में those who are not registered they should not practice. Okay, with the above direction the writ petitioner stand dispose of कर दिया. dispose of मतलब रिजेक्ट कर दिया, आपका पिटीशन रिजेक्ट कर दिया. सो अब देखिए यहाँ पे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सारे लोगों को डायरेक्शन दिया गया है, यू शुड इंस्पेक्ट. ओके, ऑर्डर दिया गया है. अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम, स्पेशली आई एम टेलिंग द पीपल हु इज फ्रॉम द तमिलनाडु, हु इज फ्रॉम द कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एनी पार्ट ऑफ द इंडिया. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग friends, I am telling about the electrohomeopathy. I don't concern any other pathy, any alternative pathy. I don't concern if you are the practitioner of acupuncture, yoga, naturopathy or anything. Our concern is related to electrohomeopathy. So just one request from the practitioner, those who are practicing, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, you can directly use, how you can go to the court without without the proper document, without the proper legality, without the concern with the the senior most people in the country. You are going to a court, this will directly hamper our practice. अगर आप बिना किसी तैयारी के, without any preparation, if you are going into the court,
code will give some negative mark, that is not impact to you, it will impact everyone. So everyone should understand, with the proper documentation we should go. Without proper documentation, we have number of the order that is in favor of the electrohomeopathy. So one more thing I want to clear, this order is not specify about the electrohomeopathy. This is the order related to community medical services. I don't care community medical services. We are concerned about our brother and sister of the electrohomeopathy. Those who are purely practicing electrohomeopathy, we are concerned about them. So here they have and second thing, they have mentioned the alternate or the petitioner, those who file this, what is the weak ground they have given. कितना कमजोर पक्ष रखा है आपने कि अल्टरनेटिव सिस्टम. आप एटलीस्ट बोलो ना विच अल्टरनेटिव मेडिसिन यू आर यूजिंग. क्या आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हो, जो आप अल्टरनेटिव सिस्टम यूज कर रहे हो, दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग टू द पेशेंट. क्या उससे किसी मरीज की मौत हुई है आज तक? क्योंकि 2F जो बोल रहा है MCI का एक्ट, मेडिसिन नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर ये ऑर्डर अल्टरनेटिव के खिलाफ नहीं है भाई लोगों, अल्टरनेटिव के खिलाफ एकदम नहीं. दिस ऑर्डर इज नॉट रिलेटेड टू अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन. दिस ऑर्डर इज रिलेटेड टू इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द मेडिसिन एंड यू हैव द एडिशनल कोर्सेज जो अल्टरनेटिव का है. इसमें भी इन्होंने पहली बात तो अल्टरनेटिव डिफाइन नहीं किया है. जो गवर्नमेंट के रिस्पोंडेंट थे, गवर्नमेंट के वकील थे, इन्होंने उसके ऊपर ही कि ये अल्टरनेटिव थे तो इन्होंने डिफाइन नहीं किया. तो इनको हम लोग रिलीफ नहीं देना चाहिए. और दूसरा है अब जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं, आप सब लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस कीजिए. प्लीज प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी. And if anytime we are struggling and we are facing issue in practice, that is well known. If you have any concern regarding any authority, please discuss with any organization. Otherwise you can contact to us, Electrohomeopathy Foundation. You can contact to your state president या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ओनली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप हो, उनसे आप डिस्कस कीजिए. जो लीगल टीम है उनकी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, यू डिस्कस विद देम. वी हैव द नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट. even if they are not supporting you, you can contact to us. My mobile number is 90042555648. 90042555648. आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए. आपको जो भी लीगल इशू रहेंगे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, इफ यू रिक्वायर द लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल इशू यू हैव एनी यू आर फेसिंग एनी लीगल इशू, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस. वी विल हेल्प यू आउट. बट आप बिना किसी प्रिपरेशन के, विदाउट एनी प्रिपरेशन, प्लीज डू नॉट फाइल एनी रीट पिटिशन, डू नॉट फाइल एनी मैंडेमस. This is directly hamper to you as well as the electrohomeopathy. So कोर्ट में जाने से पहले प्रॉपर कंसल्टेशन कीजिए. सभी लोगों के पास, सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत से अच्छे लॉयर हैं, और वो जब प्रिपरेशन के साथ में जाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा ऑर्डर आएगा. और बहुत सारे हमें पॉजिटिव भी आए हुए हैं. तो इसलिए इस ऑर्डर से जो अभी 6 मार्च 2023 को 6 मार्च 2023 we received that court judgment. It is not directly hampering to us, because they have mentioned the alternative medicine. We are the part of the electrohomeopathy. We are practicing in electrohomeopathy. If you are facing the challenge, we can file in another way, but after the proper consultation. बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के हम लोग कुछ भी कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हैं. ये हमारे पूरे इंडिया में प्रैक्टिस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड फॉर मोर मेडिकल लीगल रिलेटेड इशू प्लीज वॉच माई चैनल. थैंक यू ऑल. थैंक यू. थैंक्स फ्रॉम द इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन.